يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہمارے آج کے لیسن کا عنوان مرکبات ہے. مرکب کی جمع مرکبات. مرکب کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زائد بامعنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جملہ مفیدہ اور جملہ غیر مفیدہ. جملہ مفیدہ یعنی مرکب تعام. مرکب تعام وہ مرکب ہے جس میں بات کامل مفہوم دے. اس میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ آتے ہیں. جملہ غیر مفیدہ یعنی مرکب ناقص. مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس میں بات ادھوری رہے، کامل مفہوم نہ دے سکے. مرکب ناقص کی کئی اقسام ہیں، جیسا کہ جار مجرور، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری اور اسم موصولہ. اب ہم ایک ایک کر کے مرکب ناقص کی اقسام کو دیکھتے ہیں بالتوفیق. جار مجرور کو تو آپ پہچانتے ہی ہیں، وہ حروف جو اپنے سے بعد میں آنے والے اسم اور ضمیر کو زیر دیتے ہیں، اور اس کی کئی ایگزامپلز ہم قرآن میں بھی دیکھ چکے ہیں. مرکب توصیفی. مرکب توصیفی دو اسموں کا ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے. اس میں پہلے آنے والے اسم کو موصوف اور بعد میں آنے والے اسم کو صفت کہتے ہیں. جس اسم کی صفت بتائی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں، جبکہ صفت موصوف کی خوبی یا خامی بیان کرتی ہے. الولد الطویل یعنی لمبا لڑکا. اردو زبان میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے. لمبا لڑکا یہاں صفت پہلے آئی ہے اور موصوف بعد میں آیا ہے، جبکہ عربی زبان میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے. اردو کے برعکس ہوتا ہے. مرکب توصیفی کے رولز دیکھتے ہیں. موصوف اور صفت قسم، تعداد، جنس اور حالت میں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں. الولد الطویل، یہ دونوں اسم معرفہ ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں کی حالت رفعی ہے. ولد طویل، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی. اگر موصوف واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد ہی ہوگی. اگر موصوف مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہی ہوگی، اور حالت رفعی ہے تو صفت کی حالت بھی رفعی ہی ہوگی. یعنی دونوں اسم چاروں لحاظ سے سیم ہونا چاہیے. یہاں ایک اہم قاعدہ نوٹ کیجئے کہ اگر جمع مکسر اور باڈی پارٹس جب موصوف ہوں تو ان کی صفت واحد مؤنث آتی ہے. جمع مکسر موسٹلی مؤنث ہوتے ہیں، اس لیے صفت بھی مؤنث ہوگی. لیکن جمع مکسر غیر عاقل کی صفت واجب ہے یا مسٹ ہے ہمیشہ واحد مؤنث ہی ہوگی. اسی طرح باڈی پارٹس جو پیئر میں ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں
और जो एक हैं जैसे कि सर, दिल वगैरह वो मुज़क्कर होते हैं। जमा मुकस्सर गैर आकिल की एग्जाम्पल देखिए, अकलामुन जमीलतुन। अकलामुन कलम की जमा अकलामुन, ये जमा मुकस्सर गैर आकिल है। तो देखें इसकी सिफ्त जो है वो वाहिद मुअन्नस आई है। जैसा कि आपने देखा कि मौसूफ और सिफ्त मिलकर मुरक्कबे तौसीफी बना, और अब ये मुरक्कब जुमले में हर उस जगह आ सकता है जहां कोई इस्म आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मुरक्कब फाइल भी हो सकता है, मफूल भी हो सकता है, मुब्तदा भी हो सकता है, खबर भी हो सकता है। यहाँ अहम तरीन बात यह है कि ये जो भी बनेगा पूरा मुरक्कब बनेगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि जुमले में मौसूफ कुछ बने और सिफ्त कुछ और। जैसे कि चॉकलेट मिल्क, मिल्क और चॉकलेट को मिलाकर अब ये चॉकलेट मिल्क बन गया। क्या अब आप इसमें से चॉकलेट अलग कर सकते हैं? नहीं। इसी तरह से पहले ये अलग अलग इस्म थे, लेकिन अब ये दोनों इस्म मिलकर मुरक्कबे तौसीफी बन गए हैं। तो अब ये मुरक्कब जुमले में जो भी बनेगा ये अंडरस्टूड है कि इसमें मौसूफ और सिफ्त दोनों शामिल हैं। चलें अब कुरान में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरह फातिहा आयत नंबर 6, अस्सिराता अल मुस्तकीमा। ये देखिए, ये मुरक्कबे तौसीफी है और इन दोनों इस्म में आपस में किस्म, तादाद, जिन्स और हालत की मुताबिकत है। सूरह बकरा आयत नंबर 7, अज़ाबुन अज़ीमुन। यहाँ अज़ाबुन मौसूफ है और उसकी सिफ्त क्या है? अज़ीमुन, बहुत बड़ा अज़ाब। आयत 8 में देखिए, अल यौमी अल आखिरी। यौम की सिफ्त क्या है? अल आखिरी, यौम आखिरत। बी यहाँ हरफे जर है, इसी की वजह से यौमी की हालत जेरी हुई, और फिर जब यौमी की हालत जेरी हुई तो उसकी सिफ्त भी जेरी हालत में ही है। ऐसे ही आयत नंबर 10 में देखिए, अज़ाबुन अलीमुन। अज़ाब कैसा है? उसकी सिफ्त क्या है? अलीम है, दर्दनाक है बहुत। आयत 25 पे देखिए, अज़वाजुन मुतहरतुन। अज़वाजुन मौसूफ है और ये जमा मुकस्सर है। देखें इसकी सिफ्त जो है वो वाहिद मुअन्नस आ रही है। अज़वाज कहते हैं जोड़े को, पाकीज़ा जोड़े। सेम सूरा आयत नंबर 37, अत-तव्वाबुर रहीमु। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला के बहुत से सिफाती नाम आए हैं। बज़ाहिर आपको ये तौसीफी लग रहा है, लेकिन ये दो सिफतें हैं और मौसूफ जो है इसका वो अंडरस्टूड है, अल्लाह सुब्हानहू तआला है। तो इसको हम कहेंगे अत-तव्वाबु सिफ्त 1 और अर्रहीमु सिफ्त 2। कुरान में जहां भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम आएंगे उनको हम ऐसे ही लेंगे। वो बज़ाहिर मुरक्कबे तौसीफी की शुरूत को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो कि हमें पता है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिफाती नाम है, तो उनको हम दो सिफ्तों की तरह लेंगे। सूरह निसा आयत नंबर 94, अल हयात दुनिया। हयात कहते हैं जिंदगी को, इसकी सिफ्त क्या है? दुनिया। दुनिया की भी यहाँ जेरी हालत ही है, लेकिन दुनिया मबनी होता है, लिखने में इसकी जेरी हालत शो नहीं होती है। लेकिन जो कि यह हयात की सिफ्त है तो इसकी हालत भी जेरी ही है, यानी हयात दुनिया। निसा की ही 95 देखिए, अजरन अजीमन। अजर मौसूफ है और इसकी सिफ्त क्या है?
अजीमन, अजर बहुत बड़ा। आयत 103, किताबन मौकूतन, फर्ज मुकर्ररा वक्तों में। 101 में देखिए, अदुवन मौसूफ है और इसकी सिफ्त क्या है? मुबीनन, दुश्मन जाहिर। आयत 112, इस्मन, इसके मायने गुनाह के हैं, ये मौसूफ है, इसकी सिफ्त क्या है? मुबीनन, गुनाह जाहिर। 117, शैतानन मरीदन, शैतानन मौसूफ है और इसकी सिफ्त क्या है? मरीदन, सरकश। 118 पे देखिए, नसीबन मौसूफ है, इसके मायने हिस्सा, इसकी सिफ्त क्या है? मफरूदन, मुकर्ररा। 119 पे देखिए, खुसरानन, इसके मायने खसारा के हैं, कैसा खसारा? इसकी सिफ्त क्या है? मुबीनन, खसारा जाहिर। सूरह तौबा की आयत नंबर 19, अल कौमा मौसूफ है और कौम की सिफ्त क्या हुई? अज़्ज़ालिमीना, जालिम कौम। 24 में देखिए, अल कौमा, यहाँ कौम की सिफ्त क्या आ रही है? फासिकीना, अल फासिकीना, कौम कैसी है? नाफरमानी करने वाली है, फासिक है। आयत 28 में देखिए, यहाँ फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के दो सिफाती नाम आ रहे हैं, अलीमुन सिफ्त 1 और हकीमुन सिफ्त 2। सूरह रात आयत नंबर 12, अस-सहाबा, बादल को कहते हैं, ये मौसूफ है, बादल कैसे हैं? उसकी सिफ्त क्या है? अस-सिकाला, भारी हैं। सूरह कहफ आयत नंबर 2, बासन, इसके मायने भी अजाब के होते हैं, इसकी सिफ्त क्या है? शदीदन, यानी शदीद अजाब। कहफ की ही आयत 110, अमलन सालिहन, साले अमल। शूरा की आयत नंबर 18, दलालिन, इसके मायने गुमराही के हैं, ये मौसूफ है, इसकी सिफ्त क्या है? बईदिन, दूर तक की, गुमराही दूर की। सूरह फत आयत नंबर 1, फतहन, इसके माने फतह है, मौसूफ है ये, इसकी सिफ्त क्या है? मुबीनन। आयत 5 में देखिए, फौजन अजीमन, फौजन कहते हैं कामयाबी को, कैसी कामयाबी? सिफ्त क्या है? अजीम है, बहुत बड़ी। इसी की 18 पर देखिए, फतहन करीबन, फतहन यहाँ पर मौसूफ है, इसकी सिफ्त क्या है? फतह कैसी है? करीब है। आयत 1 में फतह की सिफ्त क्या थी? मुबय्यन थी वो, और यहाँ पर फतह कैसी है? करीब है। 19 में देखिए, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के दो सिफाती नाम आ रहे हैं। सूरह क़ाफ आयत नंबर 1, अल कुरानी अल मजीदी, कुरान मौसूफ है, इसकी सिफ्त क्या है? मजीद। आयत 2 में देखिए, शैउन अजीबुन, शैउन किसे कहते हैं? किसी चीज को, चीज कैसी है? अजीब है, उसकी सिफ्त क्या है? अजीबुन। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 26, बिइज्लिन समीनिन, बी हरफे जर है, इसी की वजह से इजलिन जेरी हालत में हुआ है। इजलिन कहते हैं बछड़े को, इसकी सिफत कैसी है? बछड़ा कैसा है? समीनिन, मोटा ताजा। इसी की 29 में देखिए, अजूजुन, अजूजुन कहते हैं बुढ़िया को, बूढ़ी औरत को, बूढ़ी औरत, इसकी सिफ्त क्या है? अकीमुन, अकीमुन बांझ को कहते हैं, बूढ़ी औरत कैसी है? बांझ है। सूरह तूर आयत नंबर 2, किताबिन मस्तूरिन, किताबिन की जेरी हालत क्यों हुई हुई है? देखें, इससे पहले हरफे जर की वा आई हुई है और ये वा कस्मिया है।
किताबन के मायने किताब। किताब कैसी है, इसकी सिफ्त क्या है? मस्तूरिन, लिखी हुई। आयत 3 में देखिए, रक्किन मंशूरिन। रक्किन यानी कागज, इसकी सिफ्त कैसी है? मंशूरिन, खुला हुआ। आयत नंबर 4 में देखिए, अल बैती अल मामूरी। बैत घर को कहते हैं और इसकी सिफ्त क्या है? मामूर, अल मामूरी, बैते मामूर। आयत नंबर 6 देखिए, बहरी। बहर कहते हैं समंदर को। समंदर कैसा है, इसकी सिफ्त क्या है? अल मसजूरी, भड़का हुआ है। तूर की ही आयत 44 देखिए, सहाबुन। सहाबुन बादल को कहते हैं, इसकी सिफ्त क्या है? मरकूमुन, तय बतय। सूरह कमर आयत नंबर 5, हिकमतुन। हिकमतुन मौसूफ हुआ, इसकी सिफ्त क्या है? बालिगतुन, इसकी सिफ्त हो गई। हिकमत कहते हैं ना, हिकमत दानाई की बात को कहते हैं। बालिगतुन मुकम्मल। सूरह कमर की ही आयत नंबर 8 पे देखिए, यौमुन असीरुन। यौम मौसूफ है, कैसा है यौम? असीरुन, निहायत सख्त। आयत 44 पे देखिए, जमीउन मुंतसिरुन। जमात, जमीउन के मायने जमात के हैं। कैसी है जमात वो? उसकी सिफ्त क्या है? गालिब आने वाली, मुंतसिरुन। सूरह वाक़िया आयत नंबर 28, सिदरिन। सिद्र बेरी को कहते हैं। कैसी है बेरी? उसकी सिफ्त क्या है? मखदूदिन, बेखार है वो, यानी खार के बगैर। 30 में देखिए, जिल्लिन ममदूदिन। जिल्लिन साए को कहते हैं, उसकी सिफ्त क्या है? साए कैसे हैं? ममदूदिन, लंबे हैं। आयत 32 देखिए, फाकिहतिन कसीरतिन। फाकिहतिन यानी फल, कसीरतिन बाफरागत। सूरह हाक्का आयत नंबर 24, अल अय्यामी अल खालियती। अय्याम यौम की जमा है, ये जमा मुकस्सर गैर आकिल है। इसकी सिफ्त देखिए, वाहिद मुअन्नस है, अल खालियती। इसे क्या माने हुए? गुज़िश्ता अय्याम। सूरह गाशिया आयत नंबर 13, सुरुरुन, ये भी जमा मुकस्सर गैर आकिल है। इसके मायने बैठ के हैं या तख्त के हैं। मरफुअतुन यानी ऊंचे, ये जमा मुकस्सर गैर आकिल है। इसकी सिफ्त देखिए, वाहिद मुअन्नस आ रही है। 14 में देखिए, अकवाबुन, ये भी जमा मुकस्सर गैर आकिल है। अकवाबुन कप्स को कहते हैं। मौदुअतुन, इसकी सिफ्त को देखिए, वाहिद मुअन्नस आ रही है, रखे हुए। सूरह बलद आयत नंबर 20, नारुन मुक़सदतुन। नारुन मुअन्नस समाई है। देखें, इसकी सिफ्त जो है वो मुअन्नसी आ रही है। नार आग को कहते हैं, इसकी सिफ्त क्या है? मुक़सदतुन, बंद की हुई। सूरह बय्यना आयत नंबर 2, सुहुफन मुतहरतन। सुहुफन जमा मुकस्सर गैर आकिल है। इसके मायने सहीफे। सहीफे कैसे हैं? उनकी सिफ्त क्या है? पाकीज़ा है। जमा मुकस्सर गैर आकिल होने की वजह से इसकी सिफ्त वाहिद मुअन्नस आई है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 67, अबवाबिन मुतफर्रिकतिन। अबवाब जो है दरवाजों को कहते हैं। बाब की जमा अबवाब। अबवाबिन जमा मुकस्सर गैर आकिल है। इसकी सिफ्त को देखिए, वाहिद मुअन्नस आई हुई है। मुतफर्रिकतिन, इसके मायने मुतफर्रिक होना। मुतफर्रिक दरवाजे। मुरक्कबे इजाफी।
मुरक्कब इजाफी दो इस्म या इस्म और ज़मीर का ऐसा मुरक्कब है जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म या ज़मीर से निस्बत, ताल्लुक या मिल्कियत बताता है। इसमें पहले आने वाला इस्म मुदाफ और बाद में आने वाला इस्म या ज़मीर मुदाफ इलैही कहलाता है। जिस इस्म को निस्बत दी जा रही हो उसे मुदाफ कहते हैं और जिसकी तरफ निस्बत दी जाए उसे मुदाफ इलैही कहते हैं। किताबु हामिदिन यानी हामिद की किताब। यहां तर्जुमा करते वक्त की, का या के अंडरस्टूड होता है जो कि उर्दू के तर्जुमे में आता है। उर्दू जबान में मुदाफ इलैही पहले आता है और मुदाफ बाद में आता है। हामिद की किताब, यहां हामिद मुदाफ इलैही है और किताब मुदाफ है, जबकि अरबी जबान में मुदाफ पहले आता है और मुदाफ इलैही बाद में आता है। उर्दू के बरअक्स होता है। मुरक्कब इजाफी के रूल्स देखते हैं। मुदाफ पर अल या तनवीन नहीं आ सकती। मुदाफ इलैही पर अल या तनवीन आ सकती है। मुदाफ मुअर्रब होता है यानी उसकी कोई भी इराबी हालत हो सकती है, जबकि मुदाफ इलैही की सिर्फ ज़ेरी हालत ही होती है हमेशा। किसी इस्म में अगर ताए मरबूता हो तो मुदाफ बनते वक्त ताए मरबूता खुलकर ताए मबसूता बन जाती है। इस गोल ता को ताए मरबूता कहते हैं और ये जो खुल के लिखी हुई है इसको ताए मबसूता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इम्राअतुन, इम्राअतुन के मायने औरत के हैं और इसके साथ ही एक इस्म लिखा हुआ है नूहुन। इसको जब मुरक्कब इजाफी बनाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा? इम्राअतु नूहिन। मुदाफ बनते वक्त ताए मरबूता खुल गई और तनवीन भी ड्रॉप हो गई। नूहिन, जो कि ये मुदाफ इलैही है तो इसकी ज़ेरी हालत होगी और मुदाफ इलैही पर तनवीन आ सकती है। तस्निया और जमा सालिम के नून मुदाफ बनते वक्त ड्रॉप हो जाते हैं। पहले तस्निया की एग्जाम्पल देखते हैं। अल बिंतानी, ये रफ़ई हालत है। इसके साथ लिखा हुआ है हामिदुन। इसको इजाफत की शक्ल दीजिए। बिंता हामिदिन। अल बिंतानी का अल भी ड्रॉप हो गया और तस्निया का नून भी ड्रॉप हो गया। मुदाफ बन रहा है ना ये। हामिदिन, जो कि ये मुदाफ इलैही है, इसकी ज़ेरी हालत है। बिंता हामिदिन, हामिद की दो बेटियां। नस्बी और ज़ेरी हालत कैसे हो जाएगी? अल बिंतैनी और साथ में हामिदुन लिखा हुआ है। इसका भी इजाफत का मुरक्कब बनाइए। बिंतई हामिदिन, अल भी ड्रॉप हो गया और तस्निया का नून भी ड्रॉप हो गया। बिंतई हामिदिन, मायने वही होंगे हामिद की दो बेटियां। अब जमा की एग्जाम्पल्स देखते हैं। अल मुस्लिमूना, ये रफ़ई हालत है और इसके साथ लिखा हुआ है अल बलदू। अल बलदू इसके मायने मुल्क के हैं, कंट्री को कहते हैं। इसकी इजाफत बनाइए, कैसे हो जाएगा? मुस्लिमू अल बलदी, मुल्क के मुसलमान। अल मुस्लिमूना का अल भी ड्रॉप हो गया
और जमा का नून भी ड्रॉप हो गया। मुदाफ इलैही पर अल आ सकता है, लेकिन इसकी हालत हमेशा जेरी होगी। नस्बी और जेरी हालत देखिए। अल मुस्लिमीना, इसकी अल बलदू के साथ इजाफत बनाइए। मुस्लिमी अल बलदी, अल ड्रॉप हो गया और जमा का नून भी ड्रॉप हो गया। मायने वही रहेंगे, मुल्क के मुसलमान। मुदाफ पर अगर जेर है तो पढ़ने की आसानी के लिए जमीर पर भी जेर पढ़ा जाएगा। हम नहीं पढ़ेंगे, हिम पढ़ेंगे। कुलूबिहिम, इसमें वही जमीरें आएंगी जो लिखने में जेर कबूल करती हैं। जैसा कि आपने देखा कि मुदाफ इलैही मिलकर मुरक्कबे इजाफत बना, और अब ये मुरक्कब जुमले में हर उस जगह आ सकता है जहां कोई इस्म आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मुरक्कब फाइल भी हो सकता है, मफूल भी हो सकता है, मुब्तदा भी हो सकता है और खबर भी हो सकता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो भी बनेगा पूरा मुरक्कब बनेगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि जुमले में मुदाफ कुछ बने और मुदाफ इलैही कुछ और। चॉकलेट मिल्क, इसकी एग्जाम्पल याद रखिए। चॉकलेट और मिल्क दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों मिल जाने के बाद अब एक हो गए, चॉकलेट मिल्क बन गया। अब आप चॉकलेट और मिल्क को अलग नहीं कर सकते। इसी तरह अब मुरक्कब इजाफी जुमले में जो भी बनेगा, ये अंडरस्टूड है कि इसमें मुदाफ और मुदाफ इलैही दोनों शामिल हैं। जुमले में ये क्या बन रहा है, इसके इराब आपको मुदाफ पर शो होंगे, क्योंकि मुदाफ इलैही की तकदीर में तो सिर्फ जेर है। इजाफत को समझ लेने के बाद चले अब हम कुरान में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरह फातिहा आयत नंबर 2, रब्बिल आलमीन। ये देखिए इजाफत का मुरक्कब बन रहा है। रब्बी मुदाफ और अल आलमीना मुदाफ इलैही है। तमाम जहानों का रब, पालने वाला। देखिए बीच में का आ गया उर्दू के तर्जुमे में। यहां मुदाफ की भी जेरी हालत है और अल आलमीना जो कि ये मुदाफ इलैही है तो इसकी जेरी हालत ही है। मालिकी यौमी इजाफत हुआ और यौमिद्दीन ये फिर इजाफत हुआ, यानी ये डबल इजाफत हो गया। रोजे जजा का मालिक। सूरह बकरा आयत नंबर 5, रब्बी हिम। रब्बी मुदाफ और हिम मुदाफ इलैही। यहां आप ये देख सकते हैं कि मुदाफ की हालत जेरी कैसे हुई। मिन हरफे जर है, उसने रब की हालत जेरी कर दी, इसलिए मुदाफ की हालत जेरी है यहां। और मुदाफ इलैही उसकी तो तकदीर में ही जेर है। मुदाफ इलैही की हमेशा हालत जेरी ही होती है। आयत नंबर 7 में देखें प्लीज। अला कुलूबिहिम। कुलूबिहिम ये आपकी इजाफत है। कुलूबी मुदाफ और हिम मुदाफ इलैही। यहां आप देख के समझ सकते हैं कि मुदाफ की जेरी हालत क्यों हुई है, अला की वजह से। अला हुरूफ जर है, इसलिए उसने कुलूबी की हालत जेरी कर दी है। और हिम मुदाफ इलैही है, उसकी हालत तो हमेशा जेरी ही होती है। आयत 39, अस्हाबुन नारी। यहां आप देख रहे हैं
कि मुदाफ की रफ़ई हालत है। अस्हाबुन नारी, दोज़ख वाले। जैसा कि आपको बताया कि इस मुरक्कब के एराब मुदाफ पर शो होते हैं। ये मुरक्कब जुमले में जो भी बन रहा होता है उसके एराब मुदाफ पर शो होते हैं, और ये जुमले में जो भी बनेगा पूरा मुरक्कब बनेगा। सूरह आले इमरान आयत नंबर 189। मुल्कुस समावाती, आसमानों की बादशाहत। वाव अत्फ की हुई, इसके मायने और के हैं। अल अर्दी, ये मातूफ हो रहा है समावाती पर। जमीन और आसमानों की बादशाहत। आगे देखिए, कुल्ली शैइन, हर चीज। कुल्ली मुदाफ है और शैइन मुदाफ इलैही। इसकी जेरी हालत कैसे हुई हुई है? अला की वजह से। मुदाफ पर जेर कैसे आया हुआ है? अला की वजह से, जो कि हरफे जर है। हर चीज पर। आयत 191 में देखिए, अज़ाबन नारी, आग का अजाब। 193 पे देखिए प्लीज, ज़ुनूबना, हमारे गुनाह। सूरह अनआम आयत 142, खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों। खुतुवात फुट स्टेप्स को कहते हैं। सेम सूरा आयत 145, लहमा खिंजीरन, लहमा गोश्त को कहते हैं और खिंजीर सुअर को, सुअर का गोश्त। 153 पे देखिए, सिराती, मेरा रास्ता। सिरात यानी रास्ता, इसके साथ याए मुतकल्लिम लगी हुई है। याद है कि आपको बताया था कि मुतकल्लिम की या इस्म के साथ लगती है और नी फेल के साथ लगती है। सूरह आराफ आयत नंबर 29, रब्बी, यहां भी आप देखिए इस्म के साथ याए मुतकल्लिम लग रही है। रब मुदाफ और याए मुतकल्लिम मुदाफ इलैही। रब्बी, मेरा रब। सूरह तौबा आयत नंबर 1, रसूलिही, उसका रसूल। तौबा की ही आयत 9 पे देखिए, बी आयातिल्लाही, बी आपका हरफे जर है। आयातिल्लाही, अल्लाह की आयतें। आयाती की जेरी हालत क्यों है? बी की वजह से, और अल्लाह की मुदाफ इलैही होने की वजह से। यहीं आगे है सबीली ही, सबीली मुदाफ और ही की जमीर मुदाफ इलैही। सबीली की जेरी हालत क्यों है? अन की वजह से। आयत 12 में देखिए, दीनिकुम। आयत 17 पे प्लीज देखें, मसाजिदल्लाही, अल्लाह की मस्जिदें। सेम सूरा आयत नंबर 29, दीन अल हक्की, दीन हक। बाज औकात तर्जुमे में की और का नहीं भी लगता। आयत 30 में देखिए, इब्नुल्लाही, इब्नु बेटे को कहते हैं। इब्नुल्लाही, अल्लाह का बेटा। सूरह यूसुफ आयत नंबर 21, लिम्राअतिही, इम्राअती, देखिए इसकी ताय मरबूता खुल गई है मुदाफ बनने की वजह से। इसकी जेरी हालत है ली की वजह से, और ही की जमीर मुदाफ इलैही है, उसकी औरत। आयत 23 में देखिए, फी बैतिहा, बैत घर को कहते हैं। बैतिहा, उसका घर।
बैती की जेरी हालत फी की वजह से है। यहाँ हा की जमीर है, यानी उस एक मुअन्नस का घर, बैतिहा। आयत नंबर 30 में भी देखिए, इम्राअतुल अजीजी, यहाँ पर देखिए इम्राअतुन की ताए मरबूता खुलकर ताए मबसूता बन गई है, खुलकर आई है। क्यों आई है इस तरह? क्योंकि मुदाफ बनी है। मुदाफ बनते वक्त ताए मरबूता खुल जाती है। अल अजीजी जेरी हालत क्यों है? क्योंकि ये मुदाफ इलैही है और मुदाफ इलैही पर अल आ सकता है। सेम सूरा आयत नंबर 109, लदारुल आखिरती, यहाँ पर ला हटा दीजिए, यह हर्फ है। दारुल आखिरती, आखिरत का घर, दार के मायने घर के हैं। सूरे कहफ आयत नंबर 27, किताबी रब्बी का, किताबी रब्बी मुदाफ मुदाफ इलैही और फिर रब्बी का मुदाफ इलैही यहां मुदाफ भी बन रहा है और इसका मुदाफ इलैही क्या है? का। किताबी की जेरी हालत क्यों है? मिन की वजह से। मिन किताबी रब्बी, ये जार मजरूर इजाफत हुआ और फिर रब्बी का डबल इजाफत हो गया। ये तर्जुमा इसका पीछे से करते हैं, आपके रब की किताब में से। वैसे तो का की जमीर हाजिर मुजक्कर वाहिद का सीगा है, इसके मायने तुम के हैं, लेकिन एहतरामन यहां मैंने आप कहा है। सेम सूरा आयत नंबर 106, जज़ाउहुम, उनकी जजा या उनकी सजा। सूरे मरियम आयत नंबर 28, अबू की, यहां वाहिद मोन्नस से खिताब है, तुम्हारा बाप, और आगे ही है उम्मुकी, तुम्हारी मां। सूरे नूर आयत नंबर 20, फदलुल्लाही, अल्लाह का फजल। सूरे कसस आयत नंबर 27, इब्नतैया, आपको मैंने अभी बताया था इब्नु बेटे को कहते हैं और इब्नतु बेटी को कहते हैं। इब्नतैनी दो बेटियां, मुदाफ बनते वक्त इब्नतैनी का नून ड्रॉप हुआ और याय मुतकल्लिम लग गई, जो कि मुदाफ इलैही है, और ये हो गया इब्नतैया, मेरी दो बेटियां। सूरे शूरा आयत नंबर 20, हरसल आखिरती, हरसा खेती को कहते हैं, तो हरसल आखिरती आखिरत की खेती। इसी में देखिए आगे, हरसत दुनिया, दुनिया की खेती। सूरे फत आयत नंबर 4, कुलूबिल मोमिनीना, मोमिनों के दिल, मुदाफ की जेरी हालत फी की वजह से है, फी कुलूबिल मोमिनीना, मोमिनों के दिलों में। सेम सूरा आयत नंबर 23, सुन्नत अल्लाही, अल्लाह की सुन्नत या अल्लाह का तरीका। यहां पर देखिए मुदाफ बनते वक्त ताए मरबूता नहीं खुली, कभी कभी ऐसा भी होता है। सूरे हुजरात आयत नंबर 2, आमालुकुम, तुम्हारे आमाल। सेम सूरा आयत नंबर 9, अम्रुल्लाही, अम्र हुक्म को कहते हैं, अल्लाह के हुक्म। इला अम्रुल्लाही, मुदाफ की जेरी हालत क्यों हुई? इला की वजह से, अल्लाह के हुक्म की तरफ। सूरे ज़ारियात आयत नंबर 24, दैफी इब्राहीमा, इब्राहीम के मेहमान। इब्राहीमा मुदाफ इलैही है, इसकी जेरी हालत ही है। इब्राहीमा गैर मुनसरिफ है, इसलिए यहां पर इसकी जेरी हालत लिखने में शो नहीं हो रही, लेकिन यहां इसकी जेरी हालत ही है मुदाफ इलैही होने की वजह से। सूरे निसा आयत नंबर 97, ज़ालिमी
अनफुसिहिम। ज़ालिमी को देखिए, ये ज़ालिमीना है, मुदाफ बनते वक्त ज़ालिमीना का नून ड्रॉप हो गया और ये ज़ालिमी हो गया। ये मुदाफ बना, इसका मुदाफ इलैही अनफुसी है और साथ ही ये मुदाफ भी बन रहा है। अनफुसी मुदाफ और इसका मुदाफ इलैही हिम है, तो ये डबल इजाफत हो गई। इसके मायने क्या होंगे? जुल्म करने वाले अपनी जानों पर। और इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। يا حامل القرآن يا حامل القرآن